Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine with the grace of Almighty Allah. We are going to take start of our science book. It is our first lecture of science. I am going to introduce your book to you. Your book is Wonder of Science by Ghadir Naqvi Ali, book 6. Okay, let's open our book. Firstly move to content page. Look at the contents of your book. Your first unit is Unit 1, Building Unit of Living Things. It is on page number 1. Move to page number 1. Here it is, Building Unit of Living Things. Before taking start of our lecture, we have to recite dua. So raise your hands for dua. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Ameen. Okay students, the name of our topic is Building Unit of Living Things. What is meant by building unit? Like brick is the building unit of a building. Then what is the building unit of living things? We have to study it. Okay. Cell is the building unit of living thing. What is cell? We will learn in this paragraph. So start reading from the first line. Take pencil in your hand. There are a variety of different organisms around us. They can be plant, animal or other organism. Some of such as mosquito or a fly are very small. Others such as an elephant or hippopotamus are very big. But one thing is common in all. They are made up of the basic unit called the cell. आपको पता है कि बहुत सारी जानदारों की किस्में पाई जाती हैं दुनिया में. कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, ह्यूमन हैं. ठीक है, तो इनकी ये डिफरेंट होते हैं ना. हर एनिमल प्लांट से डिफरेंट होता है. एनिमल एक दूसरे से आपस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सारे जो होते हैं ये सेल से बने होते हैं. प्लांट सेल डिफरेंट होता है, एनिमल सेल डिफरेंट होता है. ह्यूमन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स. हम भी लिविंग थिंग है, जानदार हैं, इसलिए हमारी जो बॉडी है वो भी सेल से बनी हुई होती है. Cell carry out all the activities of life. That is why they are called the basic units. Define cell. Come to the definition of cell. Cell is the basic structural and functional unit of the body. Cell is the basic structural and functional unit of the body. Then you have to add the answer from here. Cells carry out all the activities of the life. That is why they are called the basic units. Is it clear? Come to the second paragraph. Some organisms are single celled because their body consists of. वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है सिंगल सेल्ड होते हैं. दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड बिकॉज देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. दे आर यूनिसेलुलर. एन एग्जाम्पल इज द अमीबा. The unicellular organisms are too small to be seen with the naked eye and must be viewed through a microscope. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्हें आम इंसानी आँख नहीं देख सकती है, इसलिए इनको एक डिवाइस, एक मशीन, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. मैनी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Multi mean more than one and uni mean one. An ant and a dog are example of multicellular organism. Okay, you have to make question here. Define unicellular organism with example. You have to mark the answer. Some organisms are single cell because their body consists of only one cell. They are called unicellular. Example is amoeba. And you have to make a question here. Define multicellular organism with example. Many organisms are made up of more than one cell and are called multicellular organism. An ant and a dog are example of multicellular organism. Think and tell. Are you unicellular or multicellular? Yes, definitely we all are multicellular. Okay, next is discovery of the cell. Who discovered the cell? You have to make a question. कि सेल को दरियाफ्त किसने किया था? द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1665. एक अंग्रेज साइंसदान था जिसका नाम रॉबर्ट हुक था. 1665 में उन्होंने किया था सेल को दरियाफ्त. ही एग्जामिन्ड द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ही ऑब्जर्व्ड एम्प्टी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फिटेड टुगेदर. दे लुक लाइक टाइनी रूम्स एंड सो हुक नेम्ड देम सेल्स. Cell is a Latin word which means the small room. The wall of the cell were in fact the cell was, since the cork was the piece of plant.
प्लांट। अच्छा, हुक ने क्या किया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एक कॉर्क, एक सिंपल किसी पीस को उठाया था, उसे एग्जामिन किया था, और जब उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसे एग्जामिन किया तो उसे क्या नज़र आया कि छोटे छोटे रूम्स हैं जो एक दूसरे से अटैच हुए हैं। आपको पता है सेल का लैटिन वर्ड का है जिसका मतलब है स्मॉल रूम, तो इसलिए हुक ने इन जो से नज़र आए रूम्स उन्हें इसने सेल का नाम दिया। और उसने वो जो कॉर्क यूज़ किया था, वो जो पीस यूज़ किया था, वो किस चीज़ का था? एक पीस ऑफ प्लांट था। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे हो रही है माइक्रोस्कोपी में, तो सेल के बारे में हमें बहुत कुछ और भी पता चलता जा रहा है। यू कैन सी द डायग्राम। इस तरह की कुछ उसे नज़र आई थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल का स्ट्रक्चर। देखिए आप, इसमें ऐसे लग रहे जैसे बहुत सारे छोटे रूम्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। एंड ही हैव यूज्ड दिस माइक्रोस्कोप to examine the cell. Okay. In 1838, a German scientist named Matthias Calden performed many experiments and suggested that there are a variety of different plants in the world, but one thing is common to all, and that is that they are made up of cell. 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम मैथियस कैल्डन था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए डिफरेंट प्लांट्स पे। आपको पता है कि प्लांट्स की डिफरेंट काइंड्स है ना वर्ल्ड में, यूनिवर्स में देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स, बट देर वॉज अ सिंगल थिंग कॉमन इन द प्लांट्स दैट दे ऑल वर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे जो प्लांट हैं वो बने किस चीज़ से? में सेल से। इन 1839, अ ईयर ऑफ कैल्डन्स वर्क, अनदर साइंटिस्ट थियोडोर शचवान परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड रिपोर्टेड दैट ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इस तरह से 1839 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम थियोडोर शचवान था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सारे एनिमल्स हैं वो भी हैं तो डिफरेंट, उनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, लेकिन वो सारे कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैं। देन इन 1857 रुडोल्फ विर्शो, a German scientist, concluded on the basis of his observation that cells arise from pre-existing parent cell। 1857 में रुडोल्फ विर्शो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या रिजल्ट उनका आया ऑब्जर्वेशन का, कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कोई भी सेल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं हो सकता, उसका एक पेरेंट सेल होता है वो उससे प्रोड्यूस होता है, और जो सेल न्यू प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल, और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। By putting the work of all these scientists together, modern approved theory of By putting the work of all these scientists together, the modern approved theory of the cell as it is applied today consists of 3 parts. अब ये जो 3 साइंटिस्ट थे, मैथियस कैल्डन, थियोडोर शचवान और रुडोल्फ विर्शो, इन तीनों की थ्योरी को मिलाकर एक थ्योरी ऑफ सेल बनाई गई जो कि आज भी यूज़ की जा रही है, और इसके 3 पॉइंट्स थे। द फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जानदार पाए जाते हैं, ये तमाम किससे बने हुए? सेल से। मतलब लाइफ स्टार्ट किससे होती है? सेल से। प्लांट किससे बने हैं? सेल से। एनिमल किससे बने हैं? सेल से। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वाज सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग थिंग्स। बेसिक स्ट्रक्चर जिससे किसी बॉडी की साख्त होती है, जिससे लाइफ स्टार्ट होती है, दैट इज़ द सेल। किसी भी लिविंग थिंग का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? सेल है। और बेसिक फंक्शन भी सेल ही परफॉर्म करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, रिस्पायरेशन है, आपकी डाइजेशन है, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? सेल कंट्रोल करता है। सेल कैन कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि सेल खुद फॉर्म नहीं होता है, इसका एक पेरेंट प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है जिससे सेल फर्दर क्रिएट होते हैं। Okay, though very small, each cell is complete living unit and work as a factory to carry out all the life processes. It is composed of many different parts which work together to enable the cell to perform all the complicated activities of life, such as breaking down the molecule of food to produce energy, repairing the tissues, growth and reproduction. To learn about this amazing tiny factory, we will have to look inside the cell. ओके, दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। अभी इन्होंने फिर वही बात की है कि सेल एक पूरी फैक्ट्री है, दो कि इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कांट बी सीन विद द नैकेड आई, बट इट इज़ अ होल फैक्ट्री एज इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शन। दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 10. Your first question is define the term cell, unicellular organism and multicellular organism. You have to search the answer on page number 1 and rewrite these questions on your neat notebook. Second question is who was the first to discover the cell?
You have to find the answer on page number 2 and write it on your neat notebook. Name the 3 scientists who proposed 3 parts of the cell theory. You have to find the answer also in page number 2. What are the 3 parts of the cell theory? It is on page number 2 and 3. You have to rewrite the questions on your neat notebook in the neat form. I'll be checking these question answers, and your task must be neat and clean. What you have to do, you have to learn these questions by heart and take care of yourself. Allah Hafiz. Shukar. Cell look like flattened balloons. Once the protein are formed by rough endoplasmic reticulum, they are passed into Golgi bodies from where proteins are sent to the right location. हमने अभी पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो गोल्जी बॉडी उससे प्रोटीन को रिसीव करता है और उस ऑर्गेनेली को सेंड कर देता है जिसे उसकी ज़रूरत होती है। लाइसोसोम, डिफाइन लाइसोसोम, दीज आर द स्मॉल राउंड सेल स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन्स केमिकल दैट ब्रेक डाउन द लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन। अच्छा, ये राउंड शेप के सेल स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉलर में ब्रेक करते हैं, मतलब ग्राइंड करते हैं। दे दस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ब्रॉट इन द सेल। जो सेल में सब्सटेंसेस पाए जाते हैं या लाई जाते हैं, उनको वो ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडीज एंड ऑल्सो वर्क लाइक रिसाइकलिंग सेंटर एंड रबिश ट्रक्स ऑफ द सेल। अब गोल्जी बॉडीज़ ही ने लाइजोसोम तक लेके आई थी ना फूड पार्टिकल्स को। अच्छा, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो इन्हें रबिश ट्रक के तौर पे इनके लिए काम करते हैं। जो लाइजोसोम होते हैं वो इन्हें अपने पास स्टोर कर देते हैं और ज़रूरत के वक्त उसे सेल से बाहर निकाल देते हैं, और जो यूज़फुल होते हैं सब्सटेंसेस उन्हें वो डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। द ऑर्गेनेली इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वहाँ पे जो फूड पार्टिकल टूट रहे थे वो किसके थ्रू थे, डाइजेशन के, और यहाँ पे थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, पावर हाउस के तौर पे काम करता है सेल के, और मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल को जो फूड को है उसे ब्रेक डाउन करके बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है डिफाइन न्यूक्लियस। इन मोस्ट सेल द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। इट लुक लाइक अ बॉल एंड इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर। इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट डायरेक्ट ऑल द सेल एक्टिविटीज एंड स्टोर्स DNA। कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक प्रोटीन्स। अब न्यूक्लियस जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है जो हमारी सारे बॉडी ऑर्गन्स को, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर उसकी तमाम ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है और एक बॉल की तरह इसकी शेप होती है, मतलब राउंड शेप में होता है, और सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर होती है। इट डायरेक्ट ऑल द सेल एक्टिविटीज़ एंड स्टोर्स DNA। ये इसके अंदर DNA होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है जिससे प्रोटीन बनते हैं। और क्या होता है कि ये सेल एक्टिविटीज़ जो भी इसके पार्ट्स हैं, सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, उन तमाम के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स। These thread-like structure within the nucleus contains the genetic information that is passed from one generation of the cell to the next. क्रोमोसोम क्या करते हैं, थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले धागों की शक्ल में होते हैं। विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये क्या इसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होती है प्रोटीन्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। These are long hollow cylindrical rods or tubes that are found throughout the cytoplasm. Their function are to determine the cell shape and help the cell in variety of cell movement. अब इसका क्या काम है, ये hollow cylindrical, hollow मीन खाली, cylindrical शेप के rods होते हैं, ये ट्यूब्स होती हैं जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, सारे के सारे साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। देयर फंक्शन आर टू डिटरमिन द सेल शेप। उनका फंक्शन क्या होता है कि सेल की शेप किस तरह से होनी चाहिए डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि सेल की शेप कौन सी होगी। एंड हेल्प द सेल इन वैरायटी ऑफ सेल मूवमेंट, और सेल की मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पिंडल फाइबर। These are the microtubules that appear during cell division, seen near the nucleus. They are temporary structures that help guide the chromosome
थ्रू द साइटोप्लाज्म। स्पिंडल फाइबर तब अपीयर होते हैं जब कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है, कोई पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा होता है, तो ये तब अपीयर होते हैं, न्यूक्लियस के करीब नज़र आते हैं और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हेल्प द गाइड क्रोमोसोम थ्रू द साइटोप्लाज्म, जो कि क्रोमोसोम को गाइड करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे होते हैं ये। वैक्यूल, द वैक्यूल इज़ अ बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये एक बैग स्ट्रक्चर जिस तरह से बैग होता है उस तरह से होते हैं और एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। द वैक्यूल एक्ट लाइक अ स्टोरेज एरिया, ये स्टोरेज एरिया के तौर पे काम करते हैं। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड और एनी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अ सेल माइट नीड टू सर्वाइव। दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट विच आर सेंड आउट ऑफ द सेल। अब ये जो होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं कि अगर कभी सेल को ज़रूरत पड़ जाती है फूड की और फ़ौरन से प्रोड्यूस नहीं हो सकती तो उस फूड को ये लोग स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल्स। इनके अंदर फूड स्टोर हुई होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि सेल को नहीं चाहिए होती हैं, जिन्हें सेल से बाहर भेजना होता है, वो भी इसके अंदर स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। व्हाट यू हैव टू राइट हियर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। Look at the diagram of the plant and animal cell. What do you notice? अब देखें यहाँ पे डायग्राम शो हुई हुई है, ये एनिमल सेल की है, इसके साथ सारी लेबलिंग हुई हुई है जो अभी हमने पार्ट्स पढ़े, लाइजोसोम, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। दोनों साइड पे ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये हुई हुई है लेबलिंग। और ये डायग्राम्स यू हैव टू ड्रा ऑन योर नीट नोटबुक्स, यू हैव टू नोट ऑल द पॉइंट्स हियर। The most noticeable difference between the plant and animal cell is shape. You can see that this animal cell is almost round in shape. Animal cells vary in shape and size. Plant cells are usually rectangular and maintain their shape. अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एनिमल सेल है ये राउंड शेप में है, तकरीबन ये सर्कल शेप में है, लेकिन जो प्लांट सेल है ये इसकी शेप थोड़ी सी रेक्टेंगुलर टाइप है। जो एनिमल सेल होते हैं उनकी शेप चेंज होती रहती है, लेकिन प्लांट सेल की जो शेप होती है वो सेम रहती है और वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस कौन सा है, शेप का डिफरेंस है। सेकंड क्या है, सेल वॉल। व्हाई डज द प्लांट सेल हैव दिस रिजिड शेप। अब प्लांट की ये सख्त रिजिड शेप क्यों होती है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल वॉल। द सेल वॉल मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि प्लांट सेल की जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि इसके आउटर साइड पे सेल वॉल होती है। आपको यहाँ पे कोई सेल वॉल नज़र आ रही है, देयर इज़ नो सेल वॉल, इट्स ओनली सेल मेम्ब्रेन अराउंड द सेल। लेकिन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी सेल वॉल है ये डार्क ग्रीन कलर की, इसकी वजह से ये सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। It is because it is surrounded by an outer covering of cell wall. The cell wall is not only present in plant cell but it is also found in some other cells such as cells of fungi. ये जो सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट्स में नहीं बल्कि छोटे प्लांट्स जैसे फंजाई वगैरह में भी पाई जाती है। बट द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज व्हाइल द फंजाई इट इज़ मेड अप ऑफ अदर मटेरियल। सेल वॉल जो प्लांट में होती है सेल्यूलोज एक सब्सटेंस होता है उससे बनी हुई होती है, लेकिन जो फंजाई होती है वो किसी और मटेरियल में उसमें सेल वॉल बनी हुई होती है। द सेल वॉल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल एंड इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इट गिव द प्लांट स्टडी स्ट्रक्चर एंड हेल्प द प्लांट टू रिमेन अपराइट। सेल वॉल क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है। इसके अलावा क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड लोकेट होती है। यहाँ पे एनिमल सेल की ये सेल मेम्ब्रेन थी, इसकी ये जो पतली वाली लाइन है ग्रीन कलर की ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो डार्क ग्रीन कलर की है थोड़ी बोल्ड लाइन है ये सेल वॉल है। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और उसे स्टर्डी बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसकी शेप को स्ट्रेट रखती है। नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो क्या है, वैक्यूल। प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट टेक अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द सेल। इन एनिमल सेल्स द वैक्यूल इज मच स्मॉलर एंड देयर कैन बी मोर देन वन। अब प्लांट में क्या होता है, एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है और ज़्यादातर स्पेस इसने सेल के अंदर घेरी हुई होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। थर्ड डिफरेंस किस चीज़ का था, वैक्यूल का। फोर्थ क्या है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल दैट कैप्चर्स द लाइट एंड अलाउज द प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट का वर्ड जो है वो क्लोरोफिल में से निकला है। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस होता है ग्रीन पिगमेंट का, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और अपने लिए प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो
क्लोरोप्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अब ये जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल स्टोर करता है इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, जो कि फूड होती है किसी भी प्लांट के लिए। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये जो सारा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। You have to make question what is chloroplast and mark the answer as I have marked on my book. Make sure that all the question I have marked on my book, you have to mark this in the same way all the question on your books. This was today's lecture. If there is any confusion you may ask. Now what will be your home task? Let us decide. Come to page number 11. We have already done first 5 questions on our NEET notebook. What you have to do? You have to write question number 6 to 10 on your NEET notebook. Pages are mentioned with the question. You have to find the answer on these pages and you have to learn this question. I'll be listening. You have to solve the fill in the blanks question number 11 on your books. And second thing is that take care of yourself. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the second lecture of science. We were studying first unit, that is basic building unit of living things. Okay, start with dua. What we have learned yesterday, we learned about the cell. That cell is the basic building unit of the living things. Cell theory was presented by 3 scientists and it was having 3 parts. In first part we studied that all the living things are composed of cell. Second was that the cells are the basic units of structure and function in all living things. And third was the cell can come only from the pre-existing or parent cell. I have told you that cell can't be seen with the naked eye, so we have to use a device or instrument that is called microscope to see the cell. So start learning from here. The instrument which is used to observe tiny objects such as cell is the microscope. Without it, it would not have been possible for scientists to gain so much knowledge about the structure of the cell. वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप के बगैर हम इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप: डायसेटिंग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. The compound light microscope is commonly used in laboratories. It is a compound microscope because it uses more than one lens to magnify objects, and it is light microscope because it uses light to show the object. Compound कहते हैं किसी दो चीज़ों के कम्बिनेशन को. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो किस चीज़ का कम्बिनेशन है. ऐसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन वन लेंस होते हैं. और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये लाइट को भी यूज़ करता है ऑब्जेक्ट को मज़ीद क्लियरली देखने के लिए. You have to make question here, name some types of microscope. Then you have to mark the answer from there are different types of microscope to this point. Electron microscope, and you have to make the second question here, define compound light microscope. Mark the answer as I have marked on my book. Second question is how does it work? It means that how does compound microscope work? In compound microscope, visible light passes through the specimen and then through the glass lenses which magnify the image. जो विजिबल लाइट होती है वो पास करती है स्पेसिमेन में से. स्पेसिमेन कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसे आप मैग्नीफाई करके देख रहे हो, जिसको आप एग्जामिन कर रहे हो. एंड देन थ्रू द ग्लास लेंसेज विच मैग्नीफाई द इमेज. स्पेसिमेन से लाइट पास करती है और फिर लाइट वो ग्लास लेंस के साथ टकराती है, जिससे हम क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं मैग्नीफाइड फॉर्म में, लार्ज फॉर्म में. The object that is viewed under the microscope is known as the specimen. Specimen are sectioned, meaning they are specimens are the section meaning they are converted into very thin slices. और specimen बहुत बड़े बड़े होते हैं ना. जैसे आपने अगर किसी ह्यूमन का सेल चेक करना है तो आप उसकी कोई बॉडी का छोटा सा पार्ट हो गया, आप पूरी बॉडी तो नहीं ले सकते हो. तो माइक्रोस्कोप में भी क्या किया जाता है, थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिमेन को और फिर उसे ऑब्जर्व किया जाता है. लार्ज थिक ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर कैन नॉट बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. द स्पेसिमेन शुड ऑल्सो बी कलर्ड और डार्कन टू प्रोड्यूस द क्लियर details. A typical compound light microscope consists of the following part. First part is eyepiece. Eyepiece located at the top of the microscope. The eyepiece is the ocular lens through which you look at the magnified image. The eyepiece usually contains a 10x or 15x power lens. eyepiece वो लेंस होता है जिसमें से आप देख रहे होते हो, जो आपकी आई के करीब होता है.
ऑक्यूलर मीन्स रिलेटेड टू साइट, जिसमें से आप देखते हो वो लेंस ऑक्यूलर लेंस होता है। इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, 10x और 15x। Okay dear students, on the next page diagram of the microscope, compound microscope is given. As I will explain the points, the parts of the microscope, you have to look at the diagram, okay, because the point or the parts are labeled on the microscope diagram. Body tube, this is the part of microscope which connects the eyepiece to the objective lens. ये वो पार्ट है माइक्रोस्कोप का जो कि आईपीस को कनेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, ठीक है। दिस वाज द आईपीस और ऑक्यूलर लेंस एंड दिस इज द बॉडी ट्यूब। ये कनेक्ट किसको कर रहे हैं, बेस ऑफ आईपीस को कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट इज कनेक्टिंग द आईपीस विद द ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट इज द आर्म। द आर्म कनेक्ट्स द बॉडी ट्यूब टू द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। बॉडी ट्यूब को कनेक्ट करता है बेस ऑफ माइक्रोस्कोप। ये वाली जो चीज़ है ये आर्म है। Coarse adjustment. This knob brings the specimen into general focus by adjusting the distance of the objective lens to the slide. It moves the objective lens up and down until the magnified image is seen clearly. Coarse adjustment is a knob. ये एक नॉब है, ठीक है। ये आपके लेंस को ऊपर नीचे मूव करता है ताकि इमेज आपकी क्लियरली नज़र आ सके। फाइन एडजस्टमेंट, दिस फाइन ट्यून्स द फोकस एंड इनेबल्स द स्पेसिमेन टू बी सीन इन मोर डिटेल। ये भी आपके फोकस को क्लियर करता है ताकि ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली डिटेल में नज़र आ सके। दिस वन द नॉब। Nose piece, because it's spin, this is called revolving nose piece. It supports the objective lens. You can rotate the nose piece and change the power of the magnification as required. The viewer spins the nose piece to select different objective lenses. जो नोज पीस होता है इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, वैरायटी होती है। आप इसे रोटेट कर सकते हो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाला ऑब्जेक्टिव लेंस से चीज़ को देखने के लिए उसे रोटेट कर सकते हो प्रॉपरली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। Objective lens, one of the most important part of the compound microscope. These are the lenses closest to the specimen. A standard microscope has 3, 4 or 5 objective lenses that range in power from 4x to 100x. When focusing the microscope, care must be taken to prevent the objective lens touching the slide, as it could break the slide and destroy the specimen. While focusing, the microscope start with the lowest powered lens and then work up through the more powerful lenses. मेन जो आपका लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो आपके ऑब्जेक्ट के करीब होता है। यहाँ पे स्लाइड के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता है और ये उसके करीब होता है, उस पर फोकस करता है। आपने कोशिश ये करनी होती है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आपके स्लाइड को टच ना करने वाला। ये स्लाइड जो होता है ये ग्लास का होता है, ये टूट सकता है। स्पेसिमेन और स्लाइड। द स्पेसिमेन इज द object being examined. Most specimen are mounted on flat rectangle of thin glass called slide. Specimen वो object होता है जिसे आप examine कर रहे हो। Most specimen are mounted on flat rectangle of thin glass called slide. Specimen को इन slides के ऊपर रखा जाता है। The specimen is placed on the glass and a cover slip is placed over the specimen. Specimen को glass के ऊपर रखा जाता है और फिर इसे cover किया जाता है glass के साथ। This allows the slide to be easily inserted or removed from the microscope. आप easily ताकि slide को उसके अंदर एंटर भी कर सको और रिमूव भी कर सको। इट अलाउज द स्पेसिमेन टू बी लेबल्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड विदाउट डैमेज। कम टू द नेक्स्ट पेज। स्टेज, दिस इज़ अ फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर द स्लाइड इज प्लेस्ड। ये एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है लाइक शोन इन द डायग्राम। दिस वन इज़ द स्टेज जिसके ऊपर आप स्लाइड को प्लेस करते हो, इसके ऊपर स्लाइड को आप रखते हो। स्टेज क्लिप्स, दीज मेटल क्लिप्स होल्ड द स्लाइड इन प्लेस सो इट डज नॉट मूव। ये फिक्स कर देती हैं, स्टेज क्लिप्स जो होती हैं आपके स्लाइड को फिक्स करती हैं ताकि वो मूव ना करे, उसके ऊपर जो स्लाइड है वो मूव ना करे। अपर्चर, द होल इन द मिडल ऑफ द स्टेज अलाउज लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर टू रीच द स्पेसिमेन। अपर्चर क्या है, ये जो स्मॉल होल आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या है, अपर्चर है। अपर्चर क्या करता है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट को अलाउ करता है ताकि वो स्पेसिमेन को रीच कर सके। दिस वन इज़ द अपर्चर, इज़ दैट क्लियर? ओके। Light source or illuminator. Older microscope used mirrors to reflect light from an external source up through the bottom of the stage. However, most microscope now use a low voltage bulb. जो पहले लाइट माइक्रोस्कोप होती थी वो क्या यूज़ करती थी, एक मिरर को यूज़ करती थी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कराने के लिए, लेकिन नाउअडेज एक बल्ब को यूज़ करती हैं लाइट को थ्रो करने के लिए स्लाइड के ऊपर। आयरिस डायाफ्राम, दिस इज़ यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीचेज द स्पेसिमेन। आयरिस डायाफ्राम अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो रीच कर रही होती है। जिस तरह से आपकी सिंपल आयरिस, आपकी इंसानी आँख में जो आयरिस होती है वो भी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है ना,
ठीक है, वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है अकॉर्डिंग टू द लाइट। तो इसी तरह जो इसका आयरिस डायफ्राम है वो भी लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। कंडेंसर दिस गैदर्स एंड फोकसेस लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर ऑनटू द स्पेसिमेन बीइंग व्यूड। कंडेंसर क्या करता है कि लाइट को एक पॉइंट पर लेकर आता है, उसे इधर उधर फैलने नहीं देता। बेस द बेस सपोर्ट्स द माइक्रोस्कोप एंड इज वेयर द इल्यूमिनेटर और द लाइट सोर्स इज लोकेटेड। दिस वन इज द बेस। बेस क्या करती है, पूरी की पूरी माइक्रोस्कोप को सपोर्ट कर रही होती है। यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इट इज़ पॉसिबल टू डिस्कवर लिटिल अबाउट द सेल। लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए आप थोड़ी सी अमाउंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सेल के बारे में, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते हो। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू अ लाइट माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट यूज अनदर पावरफुल माइक्रोस्कोप कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू व्यू द डिटेल्स ऑफ टाइनी ऑर्गेनेल्स इन द सेल। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप अवेलेबल फॉर द साइंटिस्ट। अब क्या है कि सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उन्हें हम व्यू नहीं कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होती है। Now dear students, this was our today's lesson. What we have to do in home task, that is you have to draw the diagram of microscope on your neat notebook. You have to label the diagram. You have to learn the definition of microscope, its types, definition. Assalamu alaikum dear science students of grade 6. How you all are keeping? Hope you all will be fine and enjoying your holidays. Okay, welcome to the third lecture of science. We were doing unit 1. So come to page number 5 of unit 1. Okay, before the start of lecture, recite dua all of you. What we have learnt yesterday, we learnt about the microscope. That microscope is an instrument that is used to see small objects that can't be seen with the naked eye. Day before yesterday, we learnt about cell, and today we will be learning about structure and function of the cell. Come to the first paragraph. Structure and function of the cell. All cells have certain structure in common. These structure of the cell are called organelles. Each organelle of the cell has to perform a special job. जो सारे सेल होते हैं उनके कुछ जो साख्त होती है वो एक जैसी होती है, मतलब चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उनके कुछ पार्ट्स ऑर्गन तो एक बड़ा पार्ट होता है ना, जैसे आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लें, और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं या ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन होती हैं, दोनों में पाई जाती हैं, और हर जो ऑर्गेनेली होती है उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक स्पेशल जॉब होती है। टू सूट द जॉब दे डू cells differ in shape and size. Some organelles which are common in both plant and animals are, you have to make question here, define organelles. All cells have certain structure in common. The structure of the cell are called organelles. Each organelle of the cell has to perform a special job. Next is, what is cell membrane? The cell membrane is the outer covering of the cell. It is a thin membrane that surrounds the cell cytoplasm and the organelles floating in it. It controls what substances can go in and out of the cell. Cell membrane outer covering होती है सेल की, ठीक है, जो सेल को बाहर से कवर कर रही होती है. It is a thin membrane that surrounds the cell cytoplasm. ये एक पतली झिल्ली होती है जो साइटोप्लाज्म के गिर्द होती है. And the organelles floating in it. आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज को भी ये सराउंड कर रही होती है. इट कंट्रोल्स व्हाट सब्सटेंसेस कैन गो इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये कंट्रोल करती है कि कौन से सब्सटेंसेस सेल के अंदर जा सकते हैं, कौन से उसके लिए बेनिफिशियल है और कौन से उसके लिए हार्मफुल हैं. जो हार्मफुल है उन्हें वो नहीं जाने देती है उसके अंदर. दैट इज़ वाई इट इज़ सेमी परमिएबल, विच मीन्स नॉट ऑल मटीरियल कैन पास थ्रू. इट्स सेमी मीन हाफ एंड परमिएबल वर्ड परमिशन से निकला है. ये सेमी परमिएबल है क्योंकि ये डिसाइड करती है कि कुछ कौन से मटीरियल अंदर जा सकते हैं और कौन से नहीं, मतलब ये सबको अलाउ नहीं करती, कुछ को अलाउ करती है. इट ओनली अलाउ सिलेक्टेड मटीरियल टू पास थ्रू. फॉर दिस रीजन इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल. यू हैव टू मेक क्वेश्चन हियर, व्हाट इज सेमी परमिएबल एंड मार्क द आंसर.
Next is define cytoplasm. This is a jelly-like substance that hold all the organelles of the cell and fill the space between the cell membrane and the nucleus. ये एक jelly-like substance होता है. तमाम organelles जो सेल की होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं, इसके ऊपर होती हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस होती है उसे फिल करता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. This is a network of membrane throughout the cytoplasm. It is the internal support system of the cell. It looks like a maze of passageways that transport proteins from one part of the cell to the other part. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की तरह होता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन सेल के अंदर पाई जाती है. हमने जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी वो मेम्ब्रेन बाहर पाई जाती थी, और ये मेम्ब्रेन का पूरा नेटवर्क होता है. एक मेम्ब्रेन नहीं होती है. मेज का मतलब होता है भूल भुलैया, तो मतलब पूरा नेटवर्क पाया जाता है मेम्ब्रेन का. और ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, ये प्रोटीन को कैरी करती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ. इट कम इन टू फॉर्म्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम and is involved in the synthesis of proteins, and smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of lipids and does not contain ribosome. जो रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम आगे हम पढ़ेंगे वो क्या चीज़ होती है. एंड इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन प्रोड्यूस करने में ये इन्वॉल्व होती है. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके अंदर राइबोसोम नहीं होते हैं, और ये लिपिड्स यानी फैट्स को प्रोड्यूस करती है. Next है define ribosomes. These are the grain-like structure that help in the synthesis of protein in the cell. प्रोटीन की प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं. सेल के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन, आपको पता है कि सेल के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही होती है, और ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. राइबोसोम जो होते हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे दानों की फॉर्म में होते हैं, जिस तरह से दाने होते हैं. सम राइबोसोम्स आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सम रिमेन सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. कुछ वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर लटक रहे होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं, और कुछ जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं. Golgi body. Define Golgi body. This is a structure in a cell that receives proteins and other newly formed materials from the endoplasmic reticulum. अब क्या हुआ था कि प्रोटीन प्रोड्यूस हो गई, तो उसे रिसीव कौन करता है. Golgi body ऐसा एक ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है इसे रिसीव करती है. इट पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल. अब जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं उन तक पहुंचाना किसका काम है, गोल्जी बॉडी का. इट वर्क्स लाइक आर पोस्ट ऑफिस वेयर मेल अराइव्स, इट इज़ सॉर्टेड एंड सेंड टू द करेक्ट एड्रेसेस. जिस तरह से हमारी तरफ पोस्ट ऑफिस होता है, डाकखाना होता है, वो क्या करते हैं कि एक जगह से मैसेज कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और उसे सेंड कर देते हैं. तो इसी